Good evening, guys. Welcome back to my channel. So, today we will be covering the international business. Till now, I have covered all the major proportion of the syllabus of FOI, and also I have covered few topics which are very important for the FOI syllabus as well as the other professional courses. But today I am going to begin with the new subject, that is international business. To keep it a very light video, a very introductory kind of video, I will be covering these topics. Okay, so these topics are part of your unit 1, and this is the chapter number 1. I believe chapter number 1 contains two very important aspects. First of all, we will be covering these, okay, and it contains very important topic which we will be covering in the second video. So this particular chapter is further divided into two videos. Make sure that you watch both the videos in order to understand the concept very nicely. A quick suggestion, you can just watch my video at this particular speed in case you are revising the topic. Okay, so you will be able to revise everything at much better pace, and फटाफट से जाके you can give your exam. First of all, we will be covering what is the meaning. Second of all, we will be covering the difference between the two. Third, why business move abroad. Okay, why, what are the reasons of international business, what are the problems that exist with the international business, and the fifth, modes of entry into international business. So this is entirely a different topic, and I believe this is a very important topic. So in order to avoid a very long video, I will be covering this particular topic in another video. Now let's move on to the meaning of international business. हम सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सोचेंगे, हम कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं करेंगे. ठीक है, थ्योरेटिकल करेंगे सो दैट वी कैन राइट इन आवर एग्जाम्स, बट सबसे पहले वी विल थिंक ऑफ अ सिनेरियो. ठीक है, जब जाके हम चीजें समझेंगे. नाउ लेट्स थिंक ऑफ मैकडी. सबने मैकडी का बर्गर खाया, आई बिलीव, एंड सबको ये भी पता है कि ये सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता, rather it exists in almost every country around the globe, right? तो हम क्या कह रहे हैं, McD is an international business. तो international business की जब भी बात आएगी तो we will think about any MNC, think about any company that exists all around the globe or that exists in more than one country. ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंटरनेशनल बिजनेस को क्या बोला, दैट इट इज अ बिजनेस अक्रॉस कंट्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंडिया से आगे भी बहुत कंट्रीज की बात हो रही है. सेकेंड, व्हाई डू यू थिंक अ बिजनेस एग्जिस्ट, मतलब एक बंदा बिजनेस क्यों करता है. ठीक है, let's say this is Ram, and why do you think he decides to start a business? इसने इसलिए किया सो दैट इसके पास कस्टमर आएंगे, पैसे देंगे, एंड इसकी जो नीड होगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी. सिमिलरली इंटरनेशनल बिजनेस का भी यही एम होता है कि वो अपने कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करे. अब कस्टमर किसी भी फॉर्म में आ सकता है, या तो गवर्नमेंट आ सकती है तुम्हारे पास, या तुम्हारे पास कोई ऐसे इंडिविजुअल चलता हुआ आ सकता है, या तुम्हारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस तुम्हारी क्लाइंट्स हो सकती है, राइट? थर्ड, व्हाट डू यू थिंक, डोमेस्टिक में ज्यादा स्केल है या इंटरनेशनल बिजनेस में ज्यादा स्केल है? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्केल, आई एम टॉकिंग कि लेट्स से तुम्हारे घर के साइड में एक बर्गर की शॉप है और एक मैकडी है. ऑब्वियसली मैकडी का ज्यादा स्केल है, राइट? एंड मैकडी का रेवेन्यू, मैकडी के प्रॉफिट्स इज समथिंग दैट इज इम्पैक्टिंग अस एज अ कंट्री, एज अ होल, एज अ जीडीपी, एवरीथिंग. ठीक है, तो ऑब्वियसली इट हैज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस. यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वो 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लेगा, यहाँ पे बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस की बात हो रही है एज अ प्रॉफिट. ऑब्वियसली इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट, राइट? व्हेन इट कम्स टू द स्कोप, it is very vast, literally very vast scope. It just not talk about the profit कि हमने profit कितना कमाया. यहाँ पे तुम्हारी skills, technology, people involved, the kind of training that you give to them, everything is involved, right? Fifth,
एक बंदा बिजनेस इसलिए ही करता है कि वो प्रॉफिट कमा सके. आई नो देयर आर फ्यू एनपीओज दैट एग्जिस्ट बट उन्हें हम बिजनेस नहीं बोलते. तो प्रॉफिट इज द मेजर मोटिव. लेट्स से तुम्हारे पास कोई गवर्नमेंट आती है. गवर्नमेंट मेनली एंगेज होती है तुम्हारे साथ फॉर द सर्विस मोटिव, बट यू एज एन इंडिविजुअल स्टैब्लिश अ बिजनेस फॉर द प्रॉफिट पर्पस टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, तुम्हें भी अपना घर चलाना है, तुम्हें भी प्रॉफिट्स कमाने हैं, यू ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो, राइट? Now let's have a differentiation of what is domestic and what is international business. What is the major difference between the two, right? First of all, let's consider this to be a street shop. Let's say तुम्हारे घर के पास कोई बर्गर की दुकान है जिसका नाम है बिग बर्गर, एंड ये है तुम्हारी इंटरनेशनल बिजनेस दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द ग्लोब, राइट? तो डिफरेंस अगर तुम्हारे एग्जाम में ये एज अ 5 मार्कर आता है तो क्या लिखोगे? वेरी कॉमन सेंस, जोग्राफिकल कवरेज. ये ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा एरिया कवर कर लेगा, तुम्हारा सिटी कवर कर लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं चल पाएगा, बट इसने पूरा ग्लोब कवर किया हुआ है. तो डोमेस्टिक बिजनेस में क्या लिखोगे? that it is confined to the one country, one city, one area. But when it comes to the international business, जहाँ पे boundaries of countries have been covered. Language use, साइड में तुम्हें बैठ के वो क्या बोल लेगा? हिंदी बोल लेगा. ठीक है, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा वेंडर होगा तो इंग्लिश बोल लेगा, राइट? लोकल लैंग्वेज या जो उसे आती है. बट यहाँ पे तुम्हारे एम्प्लॉयज अगर यूएस में है, दे हैव टू स्पीक इंग्लिश. इफ इट इज इन फ्रांस, दे हैव टू स्पीक फ्रेंच. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो लैंग्वेज है दैट वुड बी डिफरेंट. फॉरेन लैंग्वेजेस इन डिफरेंट कंट्रीज. थर्ड, नेशनैलिटीज ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व. लेट्स से यहाँ पे कौन नेशनैलिटी ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, कौन इंक्लूड होता है? एक बायर होता है और एक सेलर होता है. तुम्हारे साइड वाले रामू काका की दुकान पे बायर भी वो इंडियन है और सेलर भी इंडियन है, राइट? बट यहाँ पे इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. बायर क्या पता यूएस का हो, ठीक है? तो दे आर बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कंट्रीज, राइट? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, व्हेन इट कम्स टू द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जनरली यहाँ पे तुम्हारा ऑटो रिक्शास या ज्यादा थोड़ा बड़ा ले लो, रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया. बट यहाँ पे इट इज एयरलाइंस एंड योर शिपिंग. जो हैमबर्गर्स आते होंगे मैकडी के, तो वो किससे आते होंगे? शिप से आते होंगे, एयरप्लेन से आते होंगे, राइट? डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व. बाय द वे, ऐसे जो पार्टीज आती है वो वही कुक होती है, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि वो अगर हैमबर्गर एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो वो कैसे आएंगे, ठीक है? I know it is actually prepared at that very moment, but I'm just taking an hypothetical example, okay? Now let's move on to the documents and formalities. यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटी formalities, बहुत ही ज्यादा कम डॉक्यूमेंट्स. तुम्हारा पैन कार्ड या आधार कार्ड मैक्सिमम, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होता है. इट इज नॉट एक्चुअली एट ऑल इजी दैट यू एंटर इनटू अनदर कंट्री. करेंसी रुपीज में होगा, राइट? बट यहाँ पे इट इज इन्वॉल्व इन मेनी डिफरेंट करेंसीज. नाउ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपने ही वेंडर को नहीं बोलेगी कि तुम दुकान मत खोलो, राइट? बट यहाँ पे अगर रिस्ट्रिक्शंस होंगी भी तो बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होगी, बट हियर इट इज वेरी ह्यूज रिस्ट्रिक्शंस. तो कीपिंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इन माइंड, तुम अपनी कॉमन सेंस लगा के भी ये 5 मार्क ऑब्टेन कर सकते हो वेरी इजीली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस. अब लेट्स से मैकडी को क्या शौक था कि वो इतनी सारी कंट्रीज में खुलता जा रहा है, ठीक है? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रीजन हो गई. हायर प्रॉफिट्स. अगर एक शॉप है और 100 शॉप है, which one will fetch you more profits? Obviously 100 shops, right? So it will give you higher profits. पता है प्रॉफिट्स और भी तरीके से होता है. लेट्स से कुछ कंट्रीज में क्या पता, लेट्स से गारमेंट है, लेट्स से एक साड़ी है, ठीक है? दिस साड़ी इन इंडिया इज 100 रुपीज, बट अगर मैं यूएस जाती हूँ तो वही साड़ी मैं 500 रुपीज की बेचती हूँ. ऑब्वियसली मेरे प्रॉफिट्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए. तो कुछ कंट्रीज में कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी सेल होते हैं, तो दैट्स द रीजन यू कैन इंक्रीज द प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द सेल्स प्राइस, और वाइस वर्सा कैन हैपन दैट यू कैन इंक्रीज द प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग योर कॉस्ट. लेट्स से आईटी, ठीक है? इंडिया में अगर आईटी कोई कंपनी लाती है तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली डिक्रीज होती है.
बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, तुम्हारे पास ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है बिकॉज वहां पे तुम पॉपुलेशन से मिलते हो, राइट? बहुत ही ज्यादा वाइड पॉपुलेशन है, ठीक है। नाउ सैचुरेशन ऑफ डोमेस्टिक, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक मार्केट में अब जीरो पे आ गए, उनके मैच्योरिटी आ गए, उनका डिक्लाइन आ गया, ठीक है। लेट्स से योर टेलीविजन, आजकल एलसीडी हमारी कंट्री में कोई नहीं लेता, बट देयर माइट एग्जिस्ट फ्यू कंट्रीज जहां पे अभी भी लोग प्रेफर कर रहे हो कि वो एलसीडीज लेंगे, ओके। नाउ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज्यादा का फायदा क्या होता है? लेट्स से तुम्हारी कंपनी पहले 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी, अब उसने ग्लोबली ऑपरेट किया तो उसे 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने। ऑब्वियसली यहाँ पे तुम ज्यादा रॉ मटेरियल ऑर्डर करोगे, ज्यादा सब कुछ ऑर्डर करोगे, तो तुम्हें डिस्काउंट्स मिलने के ज्यादा चांसेस है। तो यही मतलब होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज्यादा का फायदा। अगर मैं ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगी तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा, राइट? नाउ ग्रोइंग कंपटीशन, ऑब्वियसली डोमेस्टिक मार्केट में एक पॉइंट आ जाता है जहां बहुत ही ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन हो जाता है, बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन हो जाता है, एंड इट बिकम्स एक्सट्रीमली यू नो हार्ड, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। तो हम क्या करते हैं, हम फॉरेन मार्केट में जाते हैं, वहां पे कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं, तो वी कैन एक्चुअली इजिली कॉम्पीट विद देम। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, कई कंट्रीज में देयर इज अ रूल, देयर इज अ प्रमोशन की आओ हमारी कंट्रीज में करो सब कुछ, ठीक है। लेट्स से दुबई, दुबई सपोर्ट टूरिज्म इंडस्ट्री, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा बिजनेसेस, तो ऑब्वियसली यू विल लाइक टू मूव इन कंट्रीज जहाँ पे रेगुलेशंस पॉलिसीज थोड़े स्ट्रिक्ट कम है, राइट? Now, let's move on to the last topic for this particular video is the problems, the complexity of the international business. Obviously, McD इतना बड़ा business रातों रात नहीं बना, बहुत ही ज़्यादा complexities उसे भी झेलनी पड़ेगी. Let's talk about the political instability. Political instability क्या होती है? जब let's say आज रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उसकी जो ब्रांचेस होगी रशियन और यूक्रेन में, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट हुई होगी, राइट? एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, कई कंट्रीज के एक्सचेंज रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो आपको इम्पैक्ट करेंगे बिकॉज आप उस पर्टिकुलर करेंसी में अपना रिवेन्यू अर्न कर रहे हो, राइट? हाई कॉस्ट, इट इज नॉट एट ऑल इजी कि आप यूएस जाके अपना बिजनेस सेटअप कर लो, आपको वहां पे लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तो कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। Next point is the corruption. Corruption includes, let's say कोई कंपनी इंडिया में आना चाहती है, या let's not talk about India or let's talk about any other country जहाँ पे करप्शन बहुत ही ज्यादा हाई है, तो आपको वहाँ के ऑफिशियल्स को बहुत ही ज्यादा ब्राइब देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सेट अप योर बिजनेस। एंट्री रेगुलेशंस, कई बार गवर्नमेंट इतने ज्यादा रूल स्ट्रिक्ट कर देती है, क्यों करती है? व्हाट डू यू थिंक? लेट्स से अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ऑब्वियसली खादी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने बहुत ज्यादा रेगुलेशंस लगाए, तो इन ऑर्डर टू प्रमोट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट इम्पोज सर्टेन रूल्स, रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस, राइट? टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, व्हाट आर दे? नाउ कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, बैरियर्स लगाती है। अगेन सेम पॉइंट, इन ऑर्डर टू प्रमोट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट इम्पोज वेरियस बैरियर्स, वेरियस टैरिफ्स, वेरियस कोटास, ठीक है, restriction on the quantity that can be exported or imported. So these are the rules and regulations जो government impose करती है. The another reason could be your bureaucracy. Bureaucracy क्या होती है? जब गवर्नमेंट थोड़ा डिले करती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू विद परमिशन, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनीज आए, राइट? So this is all the problems when you deal with the international business. So that's all for this particular video. We have discussed the reasons, we have discussed the problem, we have discussed the domestic versus international business, we have discussed the meaning and features. In the next video, we will be covering modes of entry, as I mentioned earlier. But a quick
favor from you. You have to subscribe to my channel. You have to share it with my friends, with your friends. Sorry. Okay? Share it with them. Send my YouTube link to them. Help them to study too. And thank you so much. Have a great day and all the best for your exam.